Hello students, today we are going to discuss all the points and concepts related with the chapter Real Numbers of class 10th. First of all, the definition of the fundamental theorem of arithmetic is every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. I'm taking an example in this case. Suppose I want to find the prime factors of 12. We can write it as 2 into 2 into 3, and we can write the prime factors as 3 into 2 into 2 also. Now in both the cases the prime factors are same, 2 times 2 and 1 times 3 apart from the order. Okay, the next is the decimal expansion of every rational number is either terminating or non-terminating repeating. Terminating, non-terminating repeating. And the third topic of this chapter is if we have two numbers p and q, the product of their HCF and LCM will be equal to the product of the two numbers. Now the next one is the next question for this is we have two numbers. One is 3 into 5 square, prime factors of two numbers are given, and the other is 3 square into 7 square. We need to find the LCM of these two numbers. Now the LCM will be equal to the product of all the factors. All the factors are 3, 5 and 7. 3 factors. 3, 5 and 7 with the maximum powers. Now the power of 3 here is 1. The power here is 2. Which number is maximum? 2 is maximum. So the result will be 3 square into 5 square into 7 square. After calculating, after multiplying these numbers, you will get this result. Next question is the decimal representation of this number will terminate after how many decimal places. अब इसके लिए क्या करोगे आप? You will see the denominator in this case. To find the decimal representation of any number, convert the denominator into powers of 10 or multiple of 10. Look here in this part, one pair is already given, 2 into 5 that is equal to 10. We are left with 2 square. अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि वो नीचे डिनोमिनेटर में 10 की पावर्स में आ जाए? डेफिनेटली 2 स्क्वायर है, 5 के स्क्वायर के साथ मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी. जो काम हम डिनोमिनेटर में करेंगे सेम हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा. इसको सॉल्व किया, डिनोमिनेटर आ गया 1000, सॉल्व करके 0.275 आंसर. और टर्मिनेट कितने डेसिमल्स के बाद हुआ देखना, 1, 2 एंड 3. ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर. अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा. इसमें हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ दीज थ्री नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. First of all, we need to find the prime factors of all these three numbers, 72, 126 and 168. ये हमने सारे फैक्टर्स बना लिए देखो तीनों के. अब मुझे निकालना है HCF. HCF क्या है? जो कॉमन फैक्टर है हमें वो लेना है. कॉमन फैक्टर देखो क्या है, 2 तीनों में है, 3 भी तीनों में है, 7 नहीं है. 7 मुझे छोड़ना पड़ेगा. 2 और 3 ले लिया मैंने. और HCF में क्या लेना होता है? मिनिमम पार. मिनिमम पार देखो यहाँ 2 की मिनिमम पार क्या है? 1. 2 रेज टू दी पावर 1. 3 की मिनिमम पार क्या है? 1. 2 इंटू 3, 6 विल बी द आंसर. अब मुझे निकालना है LCM. LCM क्या होगा? ऑल द फैक्टर्स 2, 3 एंड 7. HCF क्या होता है? ओनली कॉमन फैक्टर्स. और LCM क्या होता है? ऑल द फैक्टर्स. और LCM में सारे फैक्टर्स के साथ पावर कौन सी? मैक्सिमम पावर. मैक्सिमम ले ली, मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आ गया.
नेक्स्ट पार्ट इसका दिया हुआ है, हमें जो दो टर्म्स दी हुई हैं इनके प्रोडक्ट की नेचर बतानी है। पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट निकालनी पड़ेगी। प्रोडक्ट निकालने के लिए दो वेज हैं यहाँ पर। दो वेज क्या हैं, ए माइनस बी और ये ए प्लस बी। देखो थोड़ा सा चेंज करके लिखोगे, बात एक ही हो गई। या जिसको ये चीज़ समझ में ना आए वो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, तब भी रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट विल बी इक्वल टू -1, दैट इज अ रैशनल नंबर। ये हमने उसकी बता दी नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमें नेक्स्ट में क्या करना है, हमें ये चेक करना है वेदर 14 रेज टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n और नॉट। सबसे पहला काम, हमें फैक्टर्स बनाने हैं 14 के। 14 के फैक्टर्स बनाएंगे, बनेंगे 2 इंटू 7। और मुझे ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 10 के 0 के साथ एंड हो सकता है। 0 के साथ एंड होने का मतलब ये 10 का मल्टीपल है, मतलब इसके पीछे 0 है, मतलब ये 10 का मल्टीपल है। अगर ये 10 का मल्टीपल है, मैं 10 के फैक्टर्स बनाऊंगी, फैक्टर्स विल बी 2 एंड 5। इसमें जो फैक्टर्स बने हैं वो 2 और 7 है। 2 तो सेम आ गया, लेकिन इसमें मेरे पास 7 है जबकि मुझे चाहिए था 5। वो नहीं है यहाँ पर। दैट मीन्स 14 रेज टू द पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0, क्योंकि जो प्राइम फैक्टर्स हैं दैट आर नॉट सेम। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा। अब नेक्स्ट में देखो, मुझे प्रूव करना है इस प्रॉपर पार्ट को इर्रेशनल। अब इर्रेशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहला काम, हम यहाँ जो आइडेंटिटी लग रही है वो अप्लाई करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सबको पता है, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। मुझे इसको प्रूव करना है इर्रेशनल, और प्रूव करने के लिए आई विल टेक दिस टू बी अ रैशनल नंबर। आई विल सपोज इट टू बी अ रैशनल नंबर। और रैशनल क्या सपोज करेंगे, p अपॉन क्यू। अब इसमें क्या है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, पहली चीज़। p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। इंटीजर्स आप सबको पता क्या होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं, जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। अब मैंने क्या किया, रूट वाली टर्म को इस साइड पे रखा, बाकी सब कुछ हम राइट हैंड साइड पे ले गए, सॉल्व किया। इसमें एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया, रूट 15 इधर आ गया, बाकी सारी टर्म उधर आ गई। All of you know that root 3 is irrational, root 5 is irrational, so their product root 15 will also be irrational. Left hand side हो गई irrational. Right hand side में देखो p और q हैं integers, and all of you know that p q are integers। और अगर हम इसमें एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें, ये जो नंबर बनेगा दैट विल बी अ रैशनल नंबर। नाउ इन दिस केस लेफ्ट हैंड साइड इज इर्रेशनल but right hand side is rational. Is it possible? Both are not equal. That means the thing we have supposed is wrong. This is the contradiction. So the given quantity is irrational. Is it okay? Next one beta. अब हमें नेक्स्ट में प्रूव करना है दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। जिसको हमें इर्रेशनल प्रूव करना है उससे उल्टा हम सपोज करने लगे हैं वी आर टेकिंग इट एज अ रैशनल नंबर। अगर मैं इसको रैशनल लूँगी, आई विल टेक इट इक्वल टू p अपॉन q, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम मीन्स विच आर हैविंग ओनली वन एज कॉमन फैक्टर। ये मेन बात आपने याद रखनी है, p और q में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करने के बाद मेरा ये पार्ट आया। अब प्राइम नंबर कौन सा है, 5। प्राइम नंबर को आपने डिनोमिनेटर में लेके आना है। कैसे लेके आओगे, इट विल बिकम p स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू q स्क्वायर। ये आ गया। दिस मीन्स 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। इफ 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, 5 विल ऑल्सो डिवाइड p। ये मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ, ये देखो। अब अगर p को डिवाइड कर रहा है 5, मैंने इसको कर लिया इक्वल टू m ले लिया यहाँ पर।
ये क्या बन जाएगा, p विल बी इक्वल टू 5m, और इसको हम कहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। सॉल्व करके मेरा ये आ गया। अब मैं फिर से 5 को ले आऊँगी डिनोमिनेटर में। इट विल बिकम q स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू m स्क्वायर। इसका मतलब 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, दैट मीन्स 5 ऑल्सो डिवाइड्स q। अब मैंने ऊपर ये प्रूव किया था 5 डिवाइड्स p, अब मैंने कर दिया 5 डिवाइड्स q। लेकिन मैंने तो आपको बिगनिंग में ये बताया था कि p and q आर को प्राइम, मीन्स दे आर नॉट हैविंग एनी फैक्टर कॉमन एक्सेप्ट 1। लेकिन हमने तो यहाँ पर प्रूव कर दिया दे आर ऑल्सो हैविंग 5 एज अ कॉमन फैक्टर, which is the contradiction again. We have supposed that root 5 is rational. That is wrong. Now we have proved that root 5 is irrational. That's all for today.